Hello everyone, welcome to Math Edu Talk. Today we study application of derivative. In last video, already we have studied all the topics related to differentiation as well as we have studied the matrix also. Okay, then here we start the application of derivative. Student, if we know the differentiation, all the formulas of differentiation, rules of differentiation, then it is better easy to solve the example related to the application of derivative. Then here we start the application of derivative. Then the application of derivative is most important concept. So we continue to see all these details related to the application of derivative. Don't skip any point or don't skip the video. You see all the entire video till the end of this. Okay, students, before starting our exercise questions, we see the some basic terms which is very important to solve the examples of application of derivative. Then first we see this. Here we have drawn the one figure. Then if y is equal to f of x is the equation of a curve, means this curve y is equal to f of x is the given curve, then it is required to find dy by dx, that is the slope of a tangent. Okay, if y is equal to f of x is the equation of a curve, then if we differentiate this y is equal to f of x, then we get dy by dx. Okay, if we differentiate this with respect to x, the derivative of y is dy by dx, and this f of x derivative is f dash of x. Okay, then this dy by dx or f dash of x is known as a slope of a tangent at a given point p of x1 y1. Then how to find slope of a tangent, which is the most important. Okay, slope of a tangent कैसे फाइंड आउट करना है? whatever the given equation of curve जो है उसे डिफरेंशिएट करना है with respect to x, and whatever you get this value of dy by dx, तो dy by dx की वैल्यू में जो भी पॉइंट गिवन है at a point means coordinates of xy is given, this point either you can call this as x1 y1 और a b point. तो a जो पॉइंट है ना वो सब्स्टिट्यूट करने, इसमें a जो dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी उसके उसमें. ओके, देन दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ अ स्लोप, दैट इज दिस इज द स्लोप ऑफ अ tangent. Then here this curve y is equal to f of x is the curve, then we will take the point p and q on this curve, that is the p point is at the distance a and q point is at the distance a plus h. Okay, then whatever this is our tangent, that is this tangent is passing through this point p, that is it touches the curve at only one point, that is the point p. This is our tangent. Differentiate the equation of curve and that substitute the value of xy, then we get the slope of a tangent at a point p. Then here we note that some results. Note, when two lines are parallel, then their slope is equal. When two lines are parallel, then the slope of these two lines are equal. Then next is when two lines are perpendicular, then the product of their slope is -1. Okay, product of their slope is -1. These two statement are very important. When two lines are parallel, then slope is equal, and when two lines are perpendicular, the product of slope is -1. Then next one is, after finding the slope of a tangent, we have to find the equation of a tangent at a point, that is whatever this point, either we call this as x1 y1 or ab. Okay, in that point, that is whatever this value of dy by dx, means after finding the slope of a tangent, we have to find the equation of a tangent at this point, means this point p. Okay, at that point p, whatever these coordinates of this point p, we have to substitute these coordinates of the point p, and we get the equation of a tangent. Means दिस पॉइंट आइदर वी कॉल दिस एज ए बी भी कर सकते हैं या x1 y1 से भी डिनोट कर सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या है? y माइनस बी इज इक्वल टू हियर द इक्वेशन ऑफ स्लोप इनटू x माइनस ए. ये b और a की जगह y1 x1 भी लिख सकते हैं, एंड दिस वैल्यूज आर स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, एंड देन सिंप्लीफाइंग दिस विच इज द इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट एट द गिवन पॉइंट. ओके, देन हियर dy by dx की जगह f dash of a भी यूज कर सकते हैं. ओके, मीन्स फाइंडिंग द स्लोप, एंड इन दैट वी सबस्टिट्यूट x as a and y as a x as a
a. Okay, then finding the value of dy by dx, in that we substitute x as a, and this dy by dx is nothing but when we take y is equal to f of x function, then derivative dy by dx, either we denote this slope by dy by dx or f dash of x. Okay, and in that if we substitute x as a, then we get f dash of a. Okay, this is also a slope. Just we are used the different notation for this slope. Dy by dx is also a slope, or this f dash of a is also slope. That is, in exam, if it is given dy by dx, then this is also a slope, or f dash of a, then this is also a slope. Okay, then is also known as slope point form of a equation. This equation of a tangent is also known as slope point form of a equation. Okay, how to find? First find slope of a tangent, and after finding slope of a tangent, you have to write the equation of a tangent. Then same thing, next concept is normal. Normal is a line which is perpendicular to the tangent. Normal जो है वो क्या है? tangent को perpendicular है, और just we have write the two results. When two lines are perpendicular, then product of their slope is -1. तो normal का जो slope होगा वो क्या होगा? माइनस टाइम reciprocal of a slope of a tangent. इसके क्या होगा? अपोजिट होगा, क्योंकि when two lines perpendicular होती है तो उनका slope क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है? -1 होता है. मतलब if tangent का slope m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? माइनस टाइम 1 अपॉन यम. ओके, माइनस टाइम इट्स रेसिप्रोकल सच दैट अगर हमने टैंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट लिया तो क्या आना चाहिए? -1 ही आ जाना चाहिए, क्योंकि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है? -1. तो ये टैंजेंट का स्लोप है, ये नॉर्मल का स्लोप है. जो भी वैल्यू मिलेगी टैंजेंट के स्लोप की, उसका रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन देंगे, वो होगा स्लोप ऑफ अ नॉर्मल. ओके, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वी हैव टू फाइंड. फर्स्ट टू फाइंड स्लोप ऑफ अ नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? अगर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, अगर स्लोप ऑफ अ टैंजेंट क्या है? dy by dx है. ओके, जस्ट वी आर राइट हियर. द स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है? dy by dx. तो इसका रेसिप्रोकल लेना है और इसे माइनस साइन देना है. तो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल क्या होगा? माइनस टाइम 1 अपॉन dy by dx, दैट इज माइनस टाइम 1 अपॉन स्लोप ऑफ अ tangent. Okay, this is the slope of normal. And then same thing, then the equation of normal by slope point form क्या होगा? y minus b. ये जो इक्वेशन यहाँ पे जो स्लोप ऑफ tangent लेते थे वहाँ पे क्या लेना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल लेना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो y minus b is equal to माइनस टाइम 1 अपॉन dy by dx at a point ab into x minus a. Okay, that is you have to remember 4 formulas. Slope of a tangent dy by dx, slope of a normal minus time its reciprocal, and equation of tangent, equation of normal. Then you use all these 4 results to solve the examples related to the exercise 4.1. Then we start the exercise questions solving. Find the equation of tangent and normal to the curve at the given point on it. मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है. टू द गिवन कर्व, मतलब हमें इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन एंड गिवन पॉइंट, मतलब पॉइंट भी दिया है. तो इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन एंड पॉइंट on this curve is also given. We have to find the equation of tangent and equation of normal. Then from this first we determine slope of a tangent. Okay, then कैसे find out करेंगे slope of a tangent? That is y is equal to equation of curve is given. We start this first one. Equation of curve is given. अगर हमने equation of curve को differentiate किया तो हमें slope of tangent मिलेगा, and in that we substitute value of x as a 1. The one equation of curve is this one. Then differentiate this with respect to x. Then अगर differentiate किया तो क्या होगा? dy by dx is equal to this derivative of this 3x square का डेरिवेटिव क्या होगा? 6x, और माइनस एक्स का -1 और 1 का क्या होगा? 0. तो डिफरेंशिएटिंग दिस स्लोप क्या होगा? dy by dx is equal to 6x minus 1. तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? dy by dx is 6x minus 1. तो दिस इज slope of a tangent at a point. What point is given? 1, 3 is given. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? dy by dx at a point 1, 3. First we differentiate and then we substitute the value of
xy. Okay, that is whatever the point is given, then dy by dx. तो अगर यहाँ पे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या होगा dy by dx एट अ पॉइंट 1 3 इज इक्वल टू 5. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 5 है. तो दिस इज dy by dx एट अ पॉइंट p इज 5. मतलब द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट गिवन पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 5 है. तो अगर आफ्टर फाइंडिंग स्लोप ऑफ अ टेंजेंट व्हाट वी हैव टू फाइंड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, y माइनस बी इज इक्वल टू द स्लोप dy बाई डी एक्स इन टू एक्स माइनस ए. ओके, तो ए बी की वैल्यू क्या है, आइदर वी डिनोट दिस एज, ये जो पॉइंट है उसे हम x1 y1 से भी डिनोट कर सकते हैं और ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए बी इज, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए बी, y माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए. दिस एफ डैश ऑफ ए दैट इज सेम थिंग एज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. ओके, एफ डैश ऑफ ए मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स ही है एट पॉइंट p. p इज 1 3. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं या y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट अ पॉइंट 1 3 इंटू एक्स माइनस ए. तो ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू क्या है, a इज 3, a इज 1 एंड b इज 3. ओके, देन substitute this value here, ab is 1 3 and this f dash of a मतलब क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या है, 5 है. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इंटू x माइनस 1 की वैल्यू. ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूट a एज 1 एंड b एज 3 सब्स्टिट्यूट किया. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा. तो y माइनस 3 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 5 मिलेगा और ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड को लेके तो 5x माइनस y माइनस 5 माइनस 3 का प्लस 3 हो जाएगा. ठीक है, 5x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड आउट करेंगे, बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑल्सो फाइंड आउट करना है. तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फर्स्ट क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए और बाद में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करें. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट का. दैट इज माइनस टाइम 1/5 होगा. मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 5 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस माइनस टाइम. तो रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 एंड गिव दिस एज माइनस साइन. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके, नाउ द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द सेम पॉइंट इज -1/5 एंड देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, ये जो है ना टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसकी जगह क्या पुट करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पुटअप करना है. ठीक है, तो सेम इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज अगेन समथिंग, क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस बी इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 माइनस टाइम 1/dy बाय डी एक्स एट पॉइंट 1 3 इंटू एक्स माइनस ए. तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है और ये -1 अपॉन क्या होगा, -1/5. जिसे अगर सिंप्लीफाई किया 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y माइनस 15 इज इक्वल टू -x एंड दिस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा. तो सिंप्लीफाइड टर्म क्या होगी, 5 से मल्टीप्लाई किया 15y माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया 5y माइनस 15, यहाँ पे क्या है रिमेनिंग माइनस टाइम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x माइनस माइनस प्लस 1. तो ए टर्म लेफ्ट को ट्रांसफर की तो 5y प्लस x माइनस 15 है तो ए -1 दैट इज x प्लस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम तरीके से सॉल्व करना है. दैट इज गिवन इज इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है और पॉइंट ऑन दिस कर्व इज गिवन. मतलब ये जो 1 1 है वो हम ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं और x1 y1 से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट अ पॉइंट 1 1. आफ्टर गेटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे एंड देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x. ये 3y स्क्वायर का क्या होगा, 6y इंटू डेरिवेटिव y होगा dy बाई डी एक्स एंड 5 का डेरिवेटिव 0. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है. मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. तो अगर 0 से कंपेयर किया तो 6y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -4x होगा. एंड देन
जीरो से कंपेयर करेंगे 6y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4x, और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो 6y से डिवाइड किया, अगर यहाँ पे कोई कॉमन टर्म है तो कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 इज 4 एंड 2 3 इज 6, तो 2 2 कैंसिल होगा, तो 2x डिवाइडेड 3y माइनस टाइम, तो डी वाई बाई डी एक्स इज -2x डिवाइडेड 3y। तो हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है, कौन से पॉइंट पे, 1 1 पे, तो इन डी वाई बाई डी एक्स, that is we find dy by dx at a point 1 1, p of 1 1 को फाइंड आउट करना है। देन द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट अ पॉइंट p of 1 1, मतलब यहाँ x y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट p of 1 1 क्या है, -2/3, therefore the slope of tangent at this point is -2/3। तो आफ्टर फाइंडिंग स्लोप ऑफ टैंजेंट नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का, y माइनस बी, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का क्या फॉर्मूला, y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ टैंजेंट dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस ए। ओके, तो y माइनस बी, ए बी की वैल्यू क्या है, a 1 1 है, आइदर वी कॉल दिस एज x1 y1 भी कर सकते हैं और ए बी भी कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 1 1 है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट अ पॉइंट 1 1। ओके, y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू x माइनस ए, तो ए बी की जगह 1 है, ए की जगह भी 1 है, और ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है उसकी वैल्यू क्या है, -2/3। ओके, हमने यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, मतलब y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट इंटू एक्स माइनस ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 टाइम क्या होगा, x माइनस 1, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x, और -2 से इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2, तो ये जो सिंप्लीफाई इक्वेशन होगा, ट्रांसफर करेंगे इस टर्म को लेफ्ट हैंड से, तो क्या होगा, माइनस का प्लस होगा, और -2 का -2x का प्लस 2x होगा, और +2 का -2 होगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3y एंड दिस -2 एंड -3 क्या होगा, -5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। आफ्टर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करने के बाद क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, बट फर्स्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दी स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट -2/3, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, और वी हैव टू गिव दिस एज माइनस साइन, ऑलरेडी क्या है इसे माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 3/2 होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दी स्लोप ऑफ टैंजेंट। देयरफॉर नाउ द स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, नाउ द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 3/2। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज सेम थिंग, यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टैंजेंट पुटअप करते हैं ना, इसकी जगह क्या पुटअप करना है, यहाँ पे है व्हेन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करते हैं, वहां पे इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट पुटअप करते हैं, तो इसकी जगह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या पुटअप करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पुटअप करना है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, मतलब y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस ए बी की वैल्यू 1 1 है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है 3/2 है, मतलब माइनस टाइम 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ओके, एंड वी फाइंड दिस एज 3/2 स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबट्यूट की वैल्यू तो सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3a, देन ट्रांसफर करेंगे दिस टर्म को राइट हैंड, तो 2y का क्या होगा, -2y होगा, और -2 का क्या होगा, +2 होगा, तो 3x माइनस 2y माइनस 3 + 2 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देन द नेक्स्ट वन इज देयर इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, सेम थिंग वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, x² + y² + xy इज इक्वल टू 3, एंड एट पॉइंट p क्या है, गिवन है 1 1, मतलब a b की वैल्यू 1 1 ही है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे, इसे डिफरेंशिएट किया स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा। देन इक्वेशन ऑफ कर्व डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, बट टू डिफरेंशिएट हियर x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, y² का क्या होगा, 2y इंटू dy बाई dx, एंड इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट हियर x y मतलब प्रोडक्ट फंक्शन है u एंड v। ओके, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट दिस u v प्रोडक्ट रूल यूज करना है। ठीक है, देयरफॉर 2x 2y dy बाई dx प्लस x into y, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1, मतलब y इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, देन x इज अ कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx इन दिस वे, एंड देन वी हैव टू फाइंड dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे भी dy बाय dx है, यहाँ पे भी dy बाय dx है, तो dy बाय dx की टर्म
कलेक्ट करेंगे, मतलब 2y dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स, इनमें से dy बाई डी एक्स आउटसाइड लेंगे, ठीक है। देयरफॉर 2y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस 2x प्लस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है ना, इसे 0 से कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा माइनस टाइम, तो माइनस साइन आउटसाइड लिया तो 2x प्लस वाई माइनस टाइम, और यहाँ से 2y प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड 2y प्लस एक्स। देन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1 पे फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट 1 1, तो एक्स की 1 सब्स्टिट्यूट की ली, वाई की 1 सब्स्टिट्यूट की, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, डिनोमिनेटर में भी क्या होगा 3, देन 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा 1, एंड दिस माइनस साइन मतलब -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -1 एट अ पॉइंट P of 1 1, therefore slope of tangent at a point P of 1 1 क्या है -1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है फॉर्मूला y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू क्या x -1, तो y माइनस बी, ए बी की वैल्यू क्या है 1 1 है, तो y -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -1 इंटू x -1, okay, therefore equation of tangent is at a point 1 1, y -1 is equal to -1 into x minus, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। therefore y -1 is equal to -x प्लस 1, देन वी ट्रांसफर दिस साइड को लेफ्ट हैंड में लेगी, तो -x का क्या होगा +x होगा, और +1 का क्या होगा -1, मतलब x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देन अगर आफ्टर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के बाद क्या फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब माइनस टाइम 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -1 है ना, तो -1, तो माइनस माइनस क्या होगा +1, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है 1 है +1 है, ठीक है। देयरफॉर नाउ द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट इज 1 1, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है y माइनस बी इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस ए होता है फॉर्मूला, तो y माइनस बी की जगह क्या है 1 है और a की जगह 1 है, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे y -1 इज इक्वल टू x -1, ट्रांसफर की ए जो टर्म है राइट हैंड में लेंगे तो -5 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x -y ऑलरेडी हियर इज -1 एंड दिस +1, -1 + 1 गेट कैंसिल, x -y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x² + 5 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x - y + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है एट अ पॉइंट इज नॉट गिवन, ओके, एंड वेयर दिस ये जो इक्वेशन टेंजेंट है ये टेंजेंट क्या है पैरेलल है इस लाइन को, ओके, इस लाइन को क्या है टेंजेंट पैरेलल है, तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज करना है हमें पता है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल, वी हैव टू यूज दिस रिजल्ट। देन यहाँ पे जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है क्या इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू x² + 5, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ तो क्या मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व dy बाय y इज इक्वल टू x² + 5 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2x इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है, देन क्या गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन 4x - y + 1 is equal to 0, comparing this equation of line with general equation, okay, then compare this given equation of line is 4x - y + 1 is equal to 0, compare it with the general equation of a line, तो general equation क्या है लाइन का ax + b y + c is equal to 0, तो अगर हमने कोएफिशिएंट कंपेयर किए x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4 है, देन यहाँ पे क्या x का कोएफिशिएंट a, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 4, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे क्या है -1 है, तो b की वैल्यू क्या है -1, एंड देन स्लोप ऑफ दी फ्रॉम दिस द स्लोप ऑफ ax + by + c का स्लोप क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप क्या होता है माइनस टाइम a अपॉन b होता है, तो माइनस टाइम 4 अपॉन -1 दैट इज 4, मतलब द स्लोप ऑफ दिस लाइन का स्लोप क्या है 4 है, एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या है 2x है, ओके, टेंजेंट का स्लोप क्या है 2x है एंड लाइन का स्लोप क्या है 4 है, तो व्हेन दिस
when two lines are parallel then their slope are equal. यहाँ पे क्या है, tangent and this line is parallel, तो tangent का slope and this line का slope equal होगा. तो slope of tangent क्या है, 2x है, and slope of line क्या है, 4 है. तो from that we get value for x. तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी. देन अगर हमने x की वैल्यू गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में सब्स्टिट्यूट की तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा. मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट करना है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को, y माइनस बी इज इक्वल टू इक्वेशन स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू x माइनस ए. तो ये जो ए बी कोऑर्डिनेट्स है ना उसकी वैल्यू मिल गई हमें. तो ए की वैल्यू क्या है, 2a एंड y b की वैल्यू क्या है, 9 है. मतलब x1 y1 और मतलब xy की वैल्यू मिल गई. ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ xy मिले तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. और after determining this we get the equation of tangent easily. Therefore equation of tangent क्या फॉर्मूला, y minus b dy by dx into x minus a. तो y minus b की जगह क्या है, 9 है और a की जगह क्या है, 2 है. This xy is equal to 2 9, that is the we have find x is 2 y is 9, that is the coordinates, okay, which is the value of a b. Same thing. Then for by using the equation of tangent, there equation of tangent y minus b is equal to dy, y minus b is equal to dy by dx into x minus a. तो dy by dx क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, और स्लोप ऑफ टैंजेंट इज क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. तो ये जो लाइन का स्लोप है वही टैंजेंट का स्लोप है. स्लोप ऑफ लाइन क्या है, 4 है, और अगर यहाँ पे भी x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किए तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज ऑल्सो 4 हो जाएगा. ठीक है, देन we substitute this value, y minus 9 is equal to slope 4 into x minus 2. सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 8 हो जाएगा. देन ट्रांसफर दिस साइड टू दी लेफ्ट राइट हैंड. तो 4x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. देन नेक्स्ट क्या फाइंड आउट कर रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 4. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट माइनस 1/4. द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus b is equal to minus 1 upon dy by dx into x minus a. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो नॉर्मल का स्लोप क्या है, -1/4 है. ओके, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y माइनस b की जगह क्या है, 9 है, -1/4 x minus 2. तो मल्टीप्लाई किया 4y माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस x, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2. तो ट्रांसफर दिस टर्म टू लेफ्ट हैंड को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस एक्स माइनस 2. तो क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x प्लस 4y माइनस 38 इज x प्लस 4y माइनस 38 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, दिस सेम थिंग प्रोसेस वी अप्लाई फॉर द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल सेम थिंग एज लास्ट वन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to equation of curve is given where tangent is parallel to the line. Then here it is required to find equation of tangent and equation of normal, and curve is given, equation of curve is given, and this tangent is parallel to the line. Then when two lines are parallel, we know that their slopes are equal. We have to use this result here. Then first from the given equation of curve we find equation slope of tangent. Then given equation of curve is this one. Then to find slope of tangent we have to differentiate this. Then differentiating with respect to x, dy by dx is equal to 6x minus 3 is the slope of tangent हो जाएगा. ठीक है, then after getting slope of tangent we find the slope of the given line. तो given equation of line क्या है, given equation of line 3x minus y plus 1 is equal to 0. कंपेयर करेंगे दिस इक्वेशन को विद द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करेंगे. तो जनरल इक्वेशन क्या है, x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है. तो a की जगह a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है, -1 है. तो a इज 3, b इज -1. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, फ्रॉम द जनरल इक्वेशन स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, -a/b. तो 3 की जगह 3 क्या है, तो -3/-1 हो जाएगा तो +3. दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, +3 इज द स्लोप ऑफ लाइन. तो टैंजेंट इज पैरेलल टू द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ लाइन क्या होगे, इक्वल ही होगे. देयरफॉर व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल then their slope are equal. तो slope of tangent and slope of line is equal because
tangent is parallel to the given equation of line. Then slope of tangent क्या है? This one. Slope of line क्या है? This one. Then 6x is equal to 6. तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1. Substitute x is equal to 1 in the given equation of curve, तो we get value of y. Therefore putting x is equal to 1 in the given equation of curve, then we get y is equal to x, y is equal to 3 into x square minus 3x minus 5. तो y is equal to क्या मिलेगी? -5 मिल जाएगी. तो we get the value of xy, that is the point on the curve. xy is the point on the curve. We call this as either a b से भी डिनोट कर सकते हैं. 1 - 5 is the point on the curve. The point on the curve भी पता है and the slope of tangent भी पता है. Then we find equation of tangent. तो equation of tangent क्या होगा? क्या फॉर्मूला? y - b is equal to slope of tangent into x - a. तो b की जगह क्या है? -5 एंड a की जगह क्या है? 1 है. तो y माइनस माइनस +5 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3 इज इक्वल टू x माइनस a की जगह क्या है? 1 है. x माइनस 1. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा 3x - 3. देन ट्रांसफर दिस टर्म टू राइट हैंड को ट्रांसफर करेंगे तो -y - 5 मिल जाएगा. 3x - y -3 - 5 तो 3x - y - 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा. ठीक है. देन आफ्टर फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला क्या है? y - b इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x - a. तो टेंजेंट का तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 3 है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब माइनस टाइम 1/3 हो जाएगा. तो y प्लस b की जगह क्या है? -5. तो y प्लस 5 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x - 1. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 15 इज इक्वल टू -x +1 हो जाएगा. तो सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड को ले, then transfer this term to left hand. 3y plus 15 plus x minus 1. x plus 3y plus 14 is equal to 0 is the equation of normal. Then thank you for watching this video. In next video we see the next topic of application of differentiation. If you like this video, then like, share and subscribe the channel.